Topic 58. The Case Study Requirements Analysis. The example we will use throughout this chapter will be that of an incubator, the temperature of which needs to be carefully controlled and monitored in order to provide the correct conditions for a particular biological experiment to be undertaken. We will specify the software needed to monitor and control the incubator temperature. In developing any software system, the first stage in the process involves an analysis of the system and an initial statement of the requirements. जब भी कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उस प्रोसेस के इब्तदाई मरहले में सिस्टम का तज्जिया और ज़रूरियात का इब्तदाई बयान शामिल होता है. It is very important in any requirements definition to be clear about the system boundaries, and we should make it clear here that in this initial version, control of the hardware lies outside of our system. लिहाजा सिस्टम की हदूद के बारे में यहाँ पे वाज़ेह होना चाहिए कि हार्डवेयर कंट्रोल सिस्टम से बाहर है. In other words, for the time being, we will be specifying a system that simply monitors the temperature of the incubator. दूसरे लफ्ज़ों में हम एक ऐसे निज़ाम की वजाहत करेंगे जो इंक्यूबेटर के दर्जा हरारत की निगरानी करता है. So later in the upcoming topics, we will modify the software requirements by adding a mechanism that actually controls the hardware as well as monitoring the temperature of the incubator. The incubator case study. अब हम चलते हैं इंक्यूबेटर की केस स्टडी की तरफ. यहाँ पे हम इंक्यूबेटर के बारे में डिस्कस करेंगे. The hardware increments or decrements the temperature of the incubator in response to instructions from someone or something outside of our system. हार्डवेयर हदायत के जवाब में इंक्यूबेटर के दर्जा हरारत को कम या ज़्यादा करता है, और ये हदायत कोई भी शख्स या चीज़ जो सिस्टम के बाहर है वो देता है. And each time a change of 1 degree has been achieved, the software is informed of the change which it duly records. हर बार जब 1 डिग्री की भी तब्दीली की जाती है तो सॉफ्टवेयर को उस तब्दीली के बारे में मतला किया जाता है जिसे वो दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड करता है. However, safety requirements dictate that the temperature of the incubator must never be allowed to rise above 10 degrees Celsius nor fall below -10 degree Celsius. ताहम हफाजती तकाज़े ये बयान करते हैं कि इंक्यूबेटर का दर्जा हरारत ना तो 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही -10 डिग्री से कम होना चाहिए. Topic 59. The UML specification. We will continue with our previous example, incubator monitor system, that we discussed in our previous topic. As we discussed that the hardware increments or decrements the temperature of the incubator in response to instructions from someone or something outside of our system. And each time a change of 1 degree has been achieved, the software is informed of the change which it duly records. However, safety requirements dictate that the temperature of the incubator must never be allowed to rise above 10 degrees Celsius nor fall below -10 degrees Celsius. यानी जैसा कि हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है कि इंक्यूबेटर का जो दर्जा हरारत है यानी उसका जो टेम्परेचर है वो ना तो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए और ना ही -10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए. अब यहाँ पे हम उसकी UML स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं,
कि UML स्पेसिफिकेशन इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की जो यहाँ पे आपको विजिबल है, वी हैव आइडेंटिफाइड 1 एट्रीब्यूट एंड 3 मेथड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक एट्रीब्यूट है जो कि है हमारा टेम्परेचर, और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर। और यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड है इंक्रीमेंट का, दूसरा मेथड है हमारा डिक्रीमेंट का, और तीसरा मेथड है हमारा गेट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को जो वो गेट कर रहा है। और वो जो टेम्परेचर को गेट कर रहा है वो किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में है। यानी द सिंगल एट्रीब्यूट रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड विल बी ऑफ टाइप इंटीजर, यानी जो टेम्परेचर है हमारा वो इंटीजर टाइप का है। The system is of course rather a crude one, dealing as it does with whole numbers only, but there will be plenty of time for developing more sophisticated and realistic systems once we have more tools at our disposal. So with regard to the methods, the first two do not involve any input or output, since they merely records an increase or decrease of 1 degree. यानी हमारे पास यहाँ पे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो यहाँ पे मेथड है, ना ही कोई इनपुट ले रहे हैं और ना ही कोई आउटपुट दे रहे हैं। द फाइनल मेथड दैट इज गेट टेम्परेचर, द फाइनल मेथड रीड्स द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर एंड देयरफॉर विल बी आउटपुट एन इंटीजर। हमारे पास जो फाइनल मेथड है वो हमारा गेट टेम्परेचर का है, जो कि हमें टेम्परेचर की वैल्यू को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, और यहाँ पे हमें वो रिटर्न कर रहा है एज एन इंटीजर फॉर्म। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे अभी इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की एक UML स्पेसिफिकेशन दिखाई है, ये उसी के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में आपकी आसानी के लिए यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है और 3 मेथड्स हैं, और जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो टेम्परेचर है, जो कि इंटीजर वैल्यू, उसकी जो टाइप है वो इंटीजर है। विद रिगार्ड टू द मेथड, द फर्स्ट टू डू नॉट इन्वॉल्व एनी इनपुट और आउटपुट सिंस दे मेरली रिकॉर्ड एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री। यानी हमारे पास जो 2 मेथड्स हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, वो ना तो कोई इनपुट ले रहे हैं और ना ही कोई आउटपुट दे रहे हैं। इसी तरह हमारा जो फाइनल मेथड है वो हमारा गेट टेम्परेचर का है, जो कि टेम्परेचर की वैल्यू को रीड कर रहा है और हमें इंटीजर की फॉर्म में उसको आउटपुट दे रहा है, यानी रिटर्न कर रहा है इंटीजर की फॉर्म में। टॉपिक 60, स्पेसिफाइंग द स्टेट। UML स्पेसिफिकेशन में हम जो पहली चीज कंसीडर करते हैं वो ये है कि क्या चीज स्टेट ऑफ द सिस्टम के तौर पर जानी जा रही है, यानी स्टेट ऑफ द सिस्टम के तौर पर यहाँ पे क्या जाना जा रहा है। इन VDMSL यानी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, VDMSL स्टैंड्स फॉर वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, एक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज है जिसमें स्टेट जो है वो परमानेंट डाटा को रेफर करती है, जो कि हमारे सिस्टम के जरिए स्टोर किया जाता है, जिसको सिस्टम के जरिए लाजमन स्टोर किया जाना चाहिए। एंड विच कैन बी एक्सेस्ड बाय मीन्स ऑफ ऑपरेशंस, जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस यानी मेथड्स के जरिए एक्सेस किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे अगेन UML स्पेसिफिकेशन जो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस की इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की, कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक एट्रीब्यूट है और 3 मेथड्स हैं, यानी 3 ऑपरेशंस हैं यहाँ पे। और वो जो एट्रीब्यूट है हमारा वो टेम्परेचर है, जो कि इंटीजर टाइप का है। द VDM स्टेट रेफर्स टू द परमानेंट डाटा स्टोर्ड बाय द सिस्टम। ये वो डाटा है जो कि सिस्टम के जरिए परमानेंटली स्टोर किया जा रहा है। अब हम फर्दर अपनी कुछ यहाँ पे इंट्रिंसिक टाइप्स हैं जो अवेलेबल हैं इन VDMSL यानी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में कुछ इंट्रिंसिक टाइप्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि हम नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे होल नंबर्स को w से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइम नंबर्स हैं उनको p से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह VDMSL यानी हमारी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज जो है, इसमें इंट्रिंसिक टाइप्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसा कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं यानी पॉजिटिव होल नंबर्स,
हमारे होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। यानी हम मैथमेटिक्स में तो होल नंबर जो कि पॉजिटिव होल नंबर्स पर मुश्तमिल है, हम होल नंबर्स को मैथमेटिक्स में तो w से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में हम नेचुरल नंबर्स यानी जो पॉजिटिव होल नंबर्स हैं उनको n से रिप्रेजेंट करेंगे। n1 जो है वो भी नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सक्लूडिंग 0, यानी ये 0 पे मुश्तमिल नहीं है, यानी इसकी जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। z जो है यानी z जो है वो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स कि हमारे पॉजिटिव होल नंबर्स क्या हैं और नेगेटिव होल नंबर्स क्या हैं, वो हमारे इंटीजर्स हैं बेसिकली, जिसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। r को यहाँ पे यूज किया गया है रियल नंबर्स के तौर पर। अब हमारे जो रियल नंबर्स हैं ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट कैन इंक्लूड अ फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है यानी पॉइंट में वैल्यू, यानी इसमें पॉइंट में भी वैल्यू आ सकती है जो कि हमारे रियल नंबर्स कहलाती है। b जो है वो यहाँ पे बूलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ट्रू और फॉल्स, येस और नो, बूलियन वैल्यूज। करेक्टर यानी द सेट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, तो जो हमारे करेक्टर्स हैं उनको हम CHAR यानी करेक्टर के तौर पर यहाँ पे जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम आगे फर्दर टॉपिक्स में जब डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे इन इंट्रिंसिक टाइप्स को किस तरह से यूज किया जा रहा है, किस तरह से इनका इस्तेमाल किया गया है, वो हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं स्पेसिफाइंग द स्टेट ऑफ इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम। जैसा कि हमने पहले एक UML स्पेसिफिकेशन इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की डिस्कस की, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल विजिबल है, इसमें हम अभी जो है वो सिर्फ बात कर रहे हैं अपने एट्रीब्यूट की, कि उस एट्रीब्यूट को जो हमारा टेम्परेचर है जो कि इंटीजर टाइप का है, हम उसको VDMSL में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टेट क्या है हमारी यहाँ पे? इंक्यूबेटर मॉनिटर, हमारे पास एक इंक्यूबेटर मॉनिटर है, वो हमारी स्टेट है। स्टेट इंक्यूबेटर मॉनिटर ऑफ टेम्प z, टेम्प कॉलन z। टेम्प यहाँ पे क्या है हमारे पास? टेम्प हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट है, और z क्या है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर को। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इंटीजर जो हैं हमारे, जो पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स हमारे होते हैं, उनको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर को यहाँ पे z से रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि UML स्पेसिफिकेशन में जो हमारे पास एट्रीब्यूट था इंटीजर का, उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, और फिर उसको VDMSL यानी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में हमने अपने एट्रीब्यूट यानी टेम्परेचर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया। वो जो इंट्रिंसिक टाइप्स हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया हमारी प्रीवियस स्लाइड में, वो किस तरह से यूज हो रही हैं इस स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि UML में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और फिर इसको वियना डेवलपमेंट मेथड यानी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज यानी VDMSL में किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया।
टॉपिक 62 डिक्लेयरिंग कॉन्स्टेंट्स। सो VDMSL यानी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा कॉन्स्टेंट्स के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हैं क्या। आप सब ने प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हम पहले उसको रिवाइज करते हैं और फिर उसको देखते हैं कि स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स को किस तरह से यूज किया गया। सो बेसिकली जो कांस्टेंट है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कांस्टेंट्स या कांस्टेंट है क्या। बेसिकली कांस्टेंट एक नेम्ड पीस ऑफ मेमोरी है, यानी जब प्रोग्राम रन होता है तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। सो कांस्टेंट्स आर यूजफुल बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड एंड असाइंड वंस। तो कांस्टेंट्स को जो है वो एक दफा डिक्लेयर कर दिया जाता है और असाइन कर दिया जाता है, बट कैन बी रेफर टू ओवर अगेन थ्रू आउट द प्रोग्राम। और उसको हम जो है थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उस कांस्टेंट की वैल्यू को जो है वो हम यूज कर सकते हैं। सो दिस मीन्स दैट इफ द प्रोग्रामर needs to change the value throughout the program code, they only need to make one change. So this can help make a program easier to maintain. यानी जब कांस्टेंट की हमें वैल्यू को चेंज करना है, यानी हमें ज़रूरत है उसकी, तो हम क्या करते हैं कि जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया है हम उसकी वैल्यू को एक जगह पे चेंज करते हैं और वो थ्रू आउट पूरे कोड के ऊपर इफेक्ट करती है। यानी हमें बार बार उसकी जो है वो वैल्यू को चेंज करने की जगह जगह पे ज़रूरत नहीं है। सो कांस्टेंट्स फॉलो द सेम नेमिंग कन्वेंशन एज वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम उसको बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन करते हैं जिस तरह हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कांस्टेंट्स को जब डिफाइन किया जाता है तो उन्हें अपर केस में डिफाइन किया जाता है। अब मैं इसको अगर दोबारा रिपीट करूं तो बेसिकली कांस्टेंट्स फॉलो द सेम नेमिंग कन्वेंशन एज वेरिएबल्स एक्सेप्ट दैट दे आर ऑफन रिटन इन अपर केस। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज पाइथन डू नॉट सपोर्ट कांस्टेंट्स। यानी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो कांस्टेंट्स को सपोर्ट नहीं करती। Constants are used for values that are unlikely to change. For example, अगर हम देखें कि कांस्टेंट जो हैं, जैसे कि मैंने बात की कि कांस्टेंट जो हैं वो यूज़ होते हैं वैल्यूज़ के तौर पर जो कि कभी भी चेंज नहीं होती या जिनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस अनटिल के आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो थ्रू आउट दी प्रोग्राम ये सेम ही रहती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कोई भी जो है वो प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई जो है कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपका कोई कोड है जिसमें आप कोई एरिया जो है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, या जो है कोई रेडियस, या इस तरह के जो प्रोग्राम्स डिफरेंट होते हैं जिनमें हम मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे पाए यूज़ होता है, ठीक है, तो या सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो पाए यूज़ हुआ है। तो पाए की वैल्यू, जैसा कि हम जानते हैं कि पाए की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। पाए की वैल्यू क्या है 3.14। तो पाए की वैल्यू तो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो बजाय इसके कि आप प्रोग्राम में बार बार जगह जगह पे उस वैल्यू को जो है वो लिखें, तो आप जो है उसे एज ए कांस्टेंट डिफाइन कर दें। तो किसी कोड के अंदर जहां जहां आपको पाए की ज़रूरत होगी तो वो उसको कॉल कर लेगा। तो अगर आपने जो है वो एक जगह पे उसको डिफाइन कर दिया है तो वो इजीली थ्रू आउट द कोड जो है वो आपकी वैल्यू सेम रहेगी और वो यूज़ होती रहेगी, आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कांस्टेंट्स जो हैं इसको वेरिएबल्स की तरह ही डिफाइन किया जाता है। जैसे हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो हम कांस्टेंट को भी किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसको हमने अपर केस में लिखना है, अपर केस में डिफाइन करना है। जैसे पाए मैंने आपको कहा, तो पाए के लिए अगर हम देखें तो हम पाए को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पाए PI पाए, और आगे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 3.14, और इस तरह से ये हमारी जो है वो एक कांस्टेंट को हमने डिफाइन कर दिया। तो हमने इसको अपर केस में लिखा, PI यानी अपर केस में।
अच्छा, अब हम चलते हैं स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज की तरफ। तो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स को किस तरह से डिक्लेयर किया गया। अभी तक जो मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया वो मैंने आपको ये बताया कि बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किस तरह से जो है वो यूज किया जाता है। तो अब हम इसको अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में बेसिकली जो है वो कॉन्स्टेंट्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है और क्या ये पॉसिबल है कि कॉन्स्टेंट को डिफाइन किया जा सके। तो ये पॉसिबल है, VDMSL में हम कॉन्स्टेंट्स को जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एसेंशियल टू एनी स्पेसिफिकेशन बट कैन ग्रेटली इनहेंस इट्स रीडेबिलिटी। तो ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है किसी भी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में कि वहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को जो है वो लाजमन डिफाइन किया जाए, लेकिन क्या है कि इससे रीडेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज होती है, वो इनहेंस होती है। तो इसलिए बेहतर है कि कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन किया जाए, कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर किया जाए। सो जो कॉन्स्टेंट्स के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो बेसिकली वैल्यूज का है, यानी वैल्यूज, VALUES, वैल्यूज जो है ये कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए जो एक कीवर्ड यूज होता है वो बेसिकली वैल्यूज का है स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं, स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज की यहाँ पे बात हो रही है। तो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट को वैल्यूज यानी VALUES वैल्यूज के थ्रू जो है वो डिफाइन किया जाता है यहाँ पे। एंड द डिक्लेरेशन वुड बी कम इमीडिएटली बिफोर द स्टेट डेफिनेशन। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को जो है वो किस तरह से डिक्लेयर किया गया। तो हम जैसे कि प्रीवियस टॉपिक से हमारी एक इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की एक एग्जांपल जो है वो चलती आ रही है, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो एक एग्जाम्पल है। आप ये देखें कि जब हमने कॉन्स्टेंट को डिफाइन करना है यानी डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे वैल्यूज का कीवर्ड यूज करेंगे। सो वैल्यूज का मतलब है कि यहाँ पे कांस्टेंट को डिक्लेयर किया गया है। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारा टेम्परेचर जो है वो ना तो 10 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही -10 डिग्री जो है उससे बढ़ना चाहिए और 10 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। हमने ये देखा था कि 10 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और -10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी देखा था कि हमारा जो टेम्परेचर था उसको जो हमने एक टेम्प वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था और वो किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमने जैसे इंट्रिंसिक टाइप्स में देखा कि इंटीजर को जो है वो z से रिप्रेजेंट किया जाता है। z जो है वो बेसिकली इंटीजर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों पे जो है वो मुश्तमिल होती है। तो हमने ये देखा था कि इंक्यूबेटर का जो आपका टेम्परेचर है वो ना तो 10 डिग्री से कम होना चाहिए और ना ही -10 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने इसको अगर कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है तो हम जो है वो मैक्स का यहाँ पे मैक्स को यूज करें MAX। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इंटीजर की हमने आगे वैल्यू जो है वो सेट कर दी। मैक्स जो है एक इंटीजर टाइप का है और उसकी हमने वैल्यू को सेट कर दिया 10। और मीन जो है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू हमने क्या रख दी, -10, जैसा कि हमने प्रीवियस भी इस बारे में पढ़ा। तो यानी मैक्स के लिए, मैक्स का मतलब है यहाँ पे हमने इसको अपर केस में डिफाइन किया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टेंट्स को आपने अपर केस में डिफाइन करना है, तो मैक्स और मीन ये यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर कर दिया। So these values could then be used in our functions and operations। अच्छा, हमने operations के बारे में पढ़ा, जैसे हम previous topics में पढ़ के आए हैं कि एक operation जो है उसको basically 4 sections में divide किया जाता है। तो वो 4 sections कौन से थे? सबसे पहले हमारा operation header था, फिर हमारा external clause था, then हमारी pre condition थी और उसके बाद हमारी post condition थी। तो यहाँ पे जो आपके सामने एक एग्जाम्पल ली गई, हमने उसमें फिर जो है वो इंक्रीमेंट का ऑपरेशन पढ़ा, डिक्रीमेंट का ऑपरेशन पढ़ा और गेट टेम्परेचर का ऑपरेशन पढ़ा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हमने एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे ले ली डिक्रीमेंट ऑपरेशन की ही। ठीक है, ताकि आपको जो है ये कांस्टेंट्स का जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो डिक्रीमेंट के ऑपरेशन में हमने प्री कंडीशन की जब बात करते हैं, ठीक है, उन 4 सेक्शंस को जो डिवाइड किया था, यानी ऑपरेशन हेडर, एक्सटर्नल क्लॉज, प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन। तो प्री कंडीशन को हम यहाँ पे ले लेते हैं कि प्री कंडीशन टेम्प ग्रेटर देन मीन। मीन क्या है हमारे पास यहाँ पे, मीन का मतलब है ये बेसिकली हमने जो ऊपर यहाँ पे
कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है। तो बेसिकली इस मीन में यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है -10। तो टेम्परेचर जो है हमारा वो -10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बात हमने की थी कि टेम्परेचर हमारा जो है वो -10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका फायदा देखें, हमें ये हुआ कि हमने -10 को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। तो अब जहां जहां पे भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, डिक्रीमेंट का ऑपरेशन यूज होगा, हमें प्री कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे जस्ट मिन जो है उसको यहाँ पे राइट कर दिया। तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, ये -10 की। तो टेम्परेचर जो है वो हमारा ग्रेटर नहीं होना चाहिए -10 से, यानी -10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यही कंडीशन हम जो है वो अगर मैक्स के लिए यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर लेस देन मैक्स, तो यहाँ पे मैक्स का, तो मैक्स की वैल्यू हमने 10 रखी है, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। तो बेसिकली ये स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, तो वो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया। यानी वैल्यूज जो है ये बेसिकली कीवर्ड है, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर किया है। ये बेसिकली कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर किया जा रहा है। और हमारे पास यहाँ पे जो थी वो इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की जो टेम्परेचर की वैल्यूज थी वो क्या थी हमारे पास, कि 10 से हमारा जो है वो कम नहीं होना चाहिए और -10 से हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उनको किस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया, हमने देखा मैक्स और मिन की सूरत में यहाँ पे हमने उनको डिक्लेयर किया और अपर केस में डिक्लेयर किया। ठीक है, और फिर किस तरह से, जैसे हमने एक एग्जांपल ली डिक्रीमेंट ऑपरेशन की, कि किस तरह से उसको फिर वहां पे यूज किया जा रहा है कंडीशन में, प्री कंडीशन के तौर पर, तो वो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। आई होप सो कि आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो यूज हो ही रहे हैं, कुछ में नहीं भी होते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, पाइथन में कॉन्स्टेंट जो है वो यूज नहीं होते। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में। तो स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में भी कॉन्स्टेंट्स यूज किए जा सकते हैं। तो VDMSL में कॉन्स्टेंट्स को किस तरह से यूज किया गया है और किस तरह से उनको जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, वो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। टॉपिक 63, स्पेसिफाइंग फंक्शंस। VDMSL यानी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। यानी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बेसिकली फंक्शंस हैं क्या। सो बेसिकली फंक्शन इज सिंपली अ चंक ऑफ कोड दैट यू कैन यूज ओवर एंड ओवर अगेन रादर देन राइटिंग इट आउट मल्टीपल टाइम्स। यानी फंक्शन जो है वो बेसिकली एक पीस ऑफ कोड है, जिसे बजाय इसके कि आप बार बार किसी प्रोग्राम में लिखें, आप उसे एक बार लिखने के बाद मल्टीपल टाइम जो है उसे यूज कर सकते हैं। यानी आपने एक फंक्शन लिख दिया किसी प्रोग्राम में, तो आप उसके मेन में उसे बार बार कॉल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। सो फंक्शंस एनेबल प्रोग्रामर्स टू ब्रेक डाउन और डीकम्पोज अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स, ईच ऑफ विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। तो हर फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब हम VDMSL में इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। A function is a set of assignments from one set to another. Thus, the function receives an input variable or values and maps this to an output value according to some rule. For example, it could accept an integer and output the square of the integer of that integer. यानी आपने कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कंसीडर कर लें कि आपने एक इंटीजर जो है वो इनपुट दिया है, तो वो आपको आउटपुट के तौर पे उस इंटीजर का स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली आपने किसी का जो है वो इनपुट के तौर पे नेम दिया है, तो आउटपुट के तौर पे आपको उस पर्सन का जो टेलीफोन नंबर है वो मिल रहा है। अब VDMSL में फंक्शन को स्पेसिफाई करने के दो तरीके हैं, यानी एक है एक्सप्लिसिटली और दूसरा है इम्प्लिसिटली। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली एक्सप्लिसिट का मतलब है प्रिसाइजली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, यानी कोई ऐसी चीज समथिंग जो बहुत प्रिसाइज हो या क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो।
और इम्प्लिसिट जो है इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो बेसिकली समथिंग दैट हैज बीन सजेस्टेड और हिंटेड बट नॉट एक्चुअली डायरेक्टली स्टेटेड और एक्सप्रेस्ड, यानी आप हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उस चीज के बारे में जो है वो डायरेक्टली उसकी स्टेट को जो है आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, यानी उसको डायरेक्टली आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हिंट की फॉर्म में आप जो है वो कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम जैसे हमने देखा कि फंक्शंस को स्पेसिफाई करने के जो हैं वो दो तरीके हैं, यानी एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्या। अब जब हम एक्सप्लिसिट फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे। तो बेसिकली द स्टाइल ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज एल्गोरिथमिक एंड वी एक्सप्लिसिटली डिफाइन द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स टू द आउटपुट। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग वेरी सिंपल फंक्शन दैट एड्स टू नंबर्स टुगेदर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जा सकता है, तो उसको यहाँ पे हम इस स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उसे डिफाइन किया गया। तो जैसे हमारे पास दो नंबर्स हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? रियल नंबर्स हमारे वो होते हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उनमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। रियल नंबर्स में फ्रैक्शनल पार्ट यानी पॉइंट में वैल्यू आ सकती है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो है द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर, यानी ये जो हमारे पास पहली लाइन है ऐड कोलन, आगे ये आप देख रहे हैं आर, मल्टीप्लाई का साइन है आर, अप्रोचेस टू आर। आर यहाँ पे क्या है? रियल नंबर्स। सो बेसिकली द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड फंक्शन सिग्नेचर। इट्स पर्पस इज टू स्टेट द इनपुट टाइप्स दैट द फंक्शन एक्सेप्ट्स टू लेफ्ट ऑफ द एरो, ठीक है। ये एरो है, आप इसकी लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, वो स्टेट्स टुगेदर विद द टाइप ऑफ द आउटपुट टू द राइट ऑफ द एरो, यानी जो आउटपुट भी आ रही है वो भी उसकी एक रियल नंबर ही होगा, ठीक है। यानी अगर आप दो रियल नंबर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो आउटपुट के तौर पे आपके पास आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। सो इन द अबव एग्जांपल, यानी जो यहाँ पे एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, द फंक्शंस टेक टू इनपुट्स, यानी दो इनपुट्स जा रही हैं, बोथ ऑफ टाइप आर, दोनों ही आर हैं यानी रियल नंबर्स हैं आपके पास, एंड आउटपुट अ वैल्यू दैट इज ऑल्सो अ टाइप आर, यानी आपके पास जो आउटपुट भी आ रही है वो भी आपके पास रियल नंबर ही है। अब हमारे पास क्या है? द सेकंड पार्ट इज द फंक्शन डेफिनेशन, कि हमारा जो सेकंड पार्ट है यानी ये वाला जो हमारा पार्ट है ऐड और ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज जा रही हैं एक्स वाई। यहाँ पे ये जो साइन है बेसिकली इसको, इस साइन को मैथमेटिक्स में हम डेल्टा का साइन बोलते हैं, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो द सेकेंड पार्ट इज द फंक्शन डेफिनेशन, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, यानी फर्स्ट जो है ये फंक्शन का सिग्नेचर है और सेकेंड जो है ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। सो द सेकेंड पार्ट इज द डेफिनेशन एंड डिस्क्राइब्स the algorithm that is used for transforming the inputs to the output. This definition is placed on the right side of delta symbol, ठीक है। ये डेल्टा सिंबल जो है इसके राइट साइड पे अगर आप देखें हमारे पास x प्लस वाई है, which is read is defined as, यानी ये जो x प्लस वाई है इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो दो वैल्यूज आई, ठीक है, तो उन दोनों को क्या कर दे? ऐड कर दे, उन दोनों को क्या कर दे? यहाँ पे ऐड कर दे। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने चीज देखी वो क्या देखी कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में हमारे पास एक एग्जांपल हमने ली कि दो नंबर्स को किस तरह से ऐड करना है। तो अब जब उसको ऐड किया हमने, उसके फंक्शंस को देखा, यहाँ पे उसको किस तरह से डिफाइन किया गया, तो उसमें जो पहली लाइन है हमारी वो बेसिकली फंक्शन का सिग्नेचर है और दूसरी जो है वो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है, जिसको अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फर्दर हम देखते हैं अपने इम्प्लिसिट फंक्शन को। इम्प्लिसिट के बारे में हमने, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि समथिंग दैट हैज बीन सजेस्टेड और हिंटेड बट नॉट एक्चुअली डायरेक्टली स्टेटेड और एक्सप्रेस्ड, यानी हिंट दिया गया आपको लेकिन डायरेक्टली आपको एक्सप्रेस नहीं किया। सो इन दिस मेथड वी यूज अ प्री एंड पोस्ट कंडीशन इन द सेम वे एज वी डिस्क्राइब्ड फॉर ऑपरेशंस। अ फंक्शन ऑफ कोर्स does not access the state variables
here is the add function defined implicitly। तो यहाँ पे implicit function को किस तरह से डिफाइन किया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक add का फंक्शन है, उसमें हमारे पास दो नंबर्स हैं x और y, ठीक है, और वो दोनों नंबर्स किस टाइप के हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास वैल्यूज हैं, और वो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट, रियल नंबर्स की खासियत क्या है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट आता है उसमें, ठीक है, फ्रैक्शनल यानी पॉइंट में आपके पास वैल्यू आ सकती है। और हमारे पास जो उन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, ठीक है, वो भी एक रियल नंबर होगा, ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो भी एक रियल नंबर ही है। तो जैसा कि हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारे पास एक ऑपरेशन हेडर होता है, उसके बाद हमारा एक्सटर्नल क्लॉज होता है, फिर प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन को यूज किया गया कि प्री कंडीशन अगर हमारे पास ट्रू है तो पोस्ट कंडीशन जब एग्जीक्यूट हो रही है तो उसमें क्या है हमारे पास के दो वैल्यूज थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्स और वाई, जो भी उनमें वैल्यूज थी उन दोनों को ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई वो जी में स्टोर हो गई, ठीक है, और जी भी एक क्या है, रियल नंबर, यानी जो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, दो रियल नंबर्स को ऐड करने के बाद जो एक वैल्यू आएगी वो भी एक रियल नंबर ही होगा ना, तो वो किस में स्टोर हो रहा है, यहाँ पे जी में। तो ये यहाँ पे बताया गया आपको कि बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि बेसिकली फंक्शन को स्पेसिफाई करने के दो मेथड हैं, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। तो एक्सप्लिसिट तरीके से हमने देखा कि किस तरह से दो नंबर्स को ऐड किया गया, और फिर इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने देखा कि किस तरह से दो नंबर्स को ऐड किया गया। टॉपिक 64, स्पेसिफाइंग अ स्टेट इनवेरिएंट। सो VDMSL में स्टेट इनवेरिएंट को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, तो इस बारे में हम इस टॉपिक के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। As you have seen that our requirements definition states that the temperature of the incubator must stay within the range -10 to +10 डिग्री सेल्सियस। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी देखा, जो अभी तक हम अपने सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं VDMSL के, तो उसमें हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी जो एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं वो बेसिकली इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की है। और हमने अपने इस चैप्टर के VDMSL के स्टार्टिंग के टॉपिक्स में इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि बेसिकली ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जिसकी रेंज -10 से +10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होनी चाहिए। सो इन VDMSL देयर इज अ मैकेनिज्म by which we can incorporate such a restriction into the specification of the state। तो VDMSL में एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिकेशन ऑफ द स्टेट की रिस्ट्रिक्शन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग अ फंक्शन नॉन एज अ स्टेट इनवेरिएंट। तो ये जो मैकेनिज्म बेसिकली इन्वॉल्व करता है, तो इस फंक्शन को स्पेसिफाई किया गया है स्टेट इनवेरिएंट के नेम से। By specifying such a function, we are creating a global constraint rather than just a local constraint, as we did with our preconditions। So हम यहाँ पे जो है वो global constraint को create करते हैं, बजाय इसके कि हम एक local constraint जो है वो यहाँ पे create करें। The invariant definition uses the keyword INV, यानी invariant को जो है, जैसे कि हमने अपने constants के टॉपिक में ये पढ़ा था कि जैसे constants के लिए एक keyword यूज किया गया है values का, तो इसी तरह इन्वेरिएंट डेफिनेशन के लिए जो यूज किया गया कीवर्ड वो INV का है, जिसका मतलब है इन्वेरिएंट, यानी INV जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वेरिएंट को। इन प्रीवियस टॉपिक यू स्टडीड अबाउट फंक्शन सिग्नेचर, सो इन दिस केस ऑफ एन इन्वेरिएंट फंक्शन INV इट्स सिग्नेचर विल बी। अच्छा, इस सिग्नेचर के ऊपर बात करने से पहले मैं बताता चलूँ कि जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक जो फंक्शंस का टॉपिक था उसमें हमने देखा कि फंक्शंस को बेसिकली दो वेज में जो है, टू वेज में उसको स्पेसिफाई किया जाता है, यानी पहला फंक्शन सिग्नेचर एंड सेकंड वे क्या था, फंक्शन डेफिनेशन। तो स्टेट इनवेरिएंट के लिए जो इसका सिग्नेचर है बेसिकली INV, जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनवेरिएंट को, स्टेट अप्रोचेज, ये अप्रोचेज का साइन है बी यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमने अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज में देखा, इंट्रिंसिक टाइप्स में देखा हमने कि हमारे पास डिफरेंट इंट्रिंसिक टाइप्स हैं।
तो उसमें एक टाइप जो थी वो बूलियन थी, और बूलियन जो है उसको बी से रिप्रेजेंट किया गया, यानी बी का मतलब है येस और नो, ट्रू और फॉल्स. सो द फंक्शन मैप्स अ वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑनटू अ बूलियन either true or false, and by specifying such a function we are saying that the state variables must be such that the result of the function is true. So incubator monitor system के लिए जो इन्वेरिएंट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने है. INV का मतलब है इन्वेरिएंट, यानी यहाँ पे इन्वेरिएंट को जो है वो स्पेसिफाई किया गया है. MK का मतलब है मेक फंक्शन. सो MK जो है वो मेक फंक्शन की जो है वो शॉर्ट फॉर्म है. मेक फंक्शन इंक्यूबेटर मॉनिटर, यानी इंक्यूबेटर मॉनिटर का फंक्शन जो है वो यहाँ पे बेसिकली मेक किया जा रहा है. द पर्पस ऑफ मेक फंक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट, इन दिस केस एन इंक्यूबेटर मॉनिटर, फ्रॉम द वैल्यूज इन द पैरामीटर लिस्ट इन द ब्रैकेट्स. तो पैरामीटर लिस्ट जो है वो यहाँ पे है हमारे पास. पैरामीटर लिस्ट इन द ब्रैकेट्स. The parameter names are arbitrary. They are matched in order to the components of the states. तो ये बेसिकली स्टेट के जो हैं वो कंपोनेंट होते हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर आपके कंपोनेंट्स हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस सूरत में हमारे पास एक ही कंपोनेंट है. सो इन आवर केस देयर इज ओनली वन कंपोनेंट टेम्प, यानी हमारे पास टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे वन कंपोनेंट है. एज यू हैव सीन द सिंबल, ये सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली इस सिंबल का मतलब है, इस सिंबल को कहा जाता है इज डिफाइंड एज. तो बेसिकली इसको डिफाइंड किया गया है इज डिफाइंड एज. मैथमेटिक्स में इसको डेल्टा का साइन भी बोलते हैं. तो बेसिकली द सिंबल, ये जो आप सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, इज डिफाइंड एज, एंड ऑन द राइट ऑफ दिस सिंबल वी प्लेस द प्रेडिकेट दैट द इनपुट पैरामीटर्स मस्ट सेटिस्फाई. ये हमारे पास बेसिकली प्रेडिकेट है. अच्छा, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक मीन वैल्यू है, एक मैक्स वैल्यू है, और मीन जो है ये अपर केस में है, मैक्स भी हमारे पास यहाँ पे अपर केस में है. ठीक है, हमने कॉन्स्टेंट्स के टॉपिक में ये पढ़ा था. बेसिकली कांस्टेंट के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि बजाय इसके कि हम वैल्यू को डिफरेंट किसी भी प्रोग्राम में डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बार बार डिफाइन करें, हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं और उसको ओवरऑल पूरे प्रोग्राम में जहां जहां हमें जरूरत है हम उसको यूज कर लेते हैं. और इन केस अगर हमें उसकी वैल्यू, वैसे तो कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है उसे बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि उसको चेंज करना पड़े. अगर हमें चेंज करनी भी पड़ती है तो हम एक जगह पे चेंज करें तो थ्रू आउट ओवरऑल द प्रोग्राम में वो चेंज हो जाए. जैसे हमने पाई की वैल्यू के बारे में पढ़ा था, पाई की वैल्यू हमेशा एक ही रहती है. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है हमेशा 3.14, हम सबको पता है पाई की वैल्यू है. तो बजाय इसके कि हम उसको जगह जगह डिफाइन करें, हम क्यों ना उसको एक ही जगह डिफाइन कर दें एज ए कांस्टेंट, ताकि हमारे पूरे प्रोग्राम में जहां जहां हमें वो जरूरत पड़े उसको, तो हम वहां पे उसको जो है वो यूज कर लें. इसी तरह इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम में हमने देखा कि उसका टेम्परेचर जो है वो -10 से +10 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन है. ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी मिन और मैक्स वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं, बजाय इसके कि हम जो है वो वैल्यूज को बार बार थ्रू आउट द प्रोग्राम या कोड में हम राइट करें, हम उन्हें एक जगह डिफाइन कर देते हैं. और हमने ये देखा कि कॉन्स्टेंट्स में हम क्या करते हैं कि हम जब कॉन्स्टेंट डिफाइन करते हैं तो बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं हम उनको अपर केस में डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो इसी तरह जो हमने मिन के लिए यहाँ पे अपर केस यूज किया, मिन MIN यानी मिन जो है ये अपर केस है. इसी तरह MAX मैक्स ये भी अपर केस है. खैर ये जो भी मैंने आपको सब बताया ये हमारा प्रीवियस टॉपिक की एक रिवीजन भी हो गई, और यहाँ पे आपको बताया कि बेसिकली यहाँ पे मिन और मैक्स है क्या. तो मिन और मैक्स जो है वो बेसिकली जो हमने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, मिन एंड मैक्स. और टी क्या है हमारा यहाँ पे, टी हमारा बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर है. ठीक है, इन दिस केस इट इज दैट द टेम्परेचर लाइज बिटवीन -10 एंड +10, यानी हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो -10 से +10 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन जो है वो बेसिकली लाई कर रहा है, यानी मिन एंड मैक्स एज वी हैव डिफाइंड देम. हेंस द एक्सप्रेशन मिन लेस देन इक्वल्स टू टी लेस देन इक्वल्स टू मैक्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इज डिफाइंड एज सिंबल, यानी इज डिफाइंड एज का ये जो सिंबल है इसके राइट साइड पे ये हमने प्रेडिकेट जो है इसको यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि INV जो है ये बेसिकली इन्वेरिएंट है और M के जो है ये बेसिकली मेक फंक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उसी बारे में यहाँ पे लिखा गया है, आफ्टर द कीवर्ड इन्वेरिएंट वी हैव द एक्सप्रेशन MK इंक्यूबेटर मॉनिटर
ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसका जो एक कंपोनेंट दिया है, यहाँ पे हमारे केस में एक ही कंपोनेंट है जो टेम्परेचर का है, विच इफेक्टिवली इज द इनपुट टू द इनवेरिएंट फंक्शन. दिस एक्सप्रेशन इज itself a function and is known as a make function. The mk is pronounced make. तो यहाँ पे जो mk है ये बेसिकली make, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि mk यहाँ पे make को रिप्रेजेंट कर रहा है. So this discussion of the invariant gives the opportunity to think about the idea of mathematical proof and integrity checking in connection with software development. अगर मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करने की आपको कोशिश करूं, बेसिकली one of the integrity checks that we should undertake is to show that none of our operations violate the invariant. In our example, this means that none of our operations ever raises the temperature above 10 degrees Celsius or decrease it below minus 10 degrees Celsius. In a simple system such as this, it would not be worth the effort of writing a formal proof for each operation. It is good enough to provide a rigorous argument. So in the increment operation, for example, we can argue that because the precondition states that the temperature must be below 10 degree before the operation can take place, this means that the temperature will never rise above 10 degree as a result of this operation. A similar argument can be provided for the decrement operation. Of course, we have to take account of possibility of violating the invariant only in the case of operations that have write access to the state and operations such as get temp. तो हमने देखे थे हमारे डिफरेंट मेथड्स थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, गेट टेम्प का. जैसे अभी मैंने आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी यहाँ पे रिवाइज भी किया. और गेट टेम्प हमारा जो था ये क्या कर रहा था बेसिकली कि गेट टेम्प का हमारा जो मेथड था ये एक वैल्यू को जो है वो रीड कर रहा है, यानी इसके पास सिर्फ रीड ओनली एक्सेस है. तो वैल्यू को रीड कर रहा है और हमें रिटर्न कर रहा है एक इंटीजर वैल्यू करंट टेम्परेचर की, यानी करंट टेम्परेचर उसने उठाया और उसे हमें रिटर्न कर दिया. So such as get temp, which has read-only access, cannot change the value of the state variables and therefore cannot violate the invariant. So I hope so कि आपको जो है वो हम स्टेट इन्वेरिएंट को किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं उसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की. तो आई होप सो कि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. टॉपिक 65, Specifying an initialization function. आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम फंक्शन इनिशियलाइजेशन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसा कि आपने सी लैंग्वेज में फंक्शन इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि फंक्शन को किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है और फंक्शन को क्यों इनिशियलाइज किया जाता है, यानी हमें फंक्शन इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो फंक्शन इनिशियलाइजेशन को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है VDMSL यानी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में, तो इस बारे में जो है वो आज हम पढ़ते हैं. जैसा कि हम अपने इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और ये हो सकता है कि आपने भी ये चीज़ आइडेंटिफाई की हो कि जब इस सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए. ठीक है, तो हमने इस बारे में जो है वो पहले जो है वो नहीं पढ़ा, इस चीज़ को हमने देखा भी नहीं. हम अभी तक ये तो देखते आए हैं कि जो इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम है हमारा, उसका जो टेम्परेचर है ना तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना चाहिए और ना ही -10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, नहीं उससे नीचे नहीं होना चाहिए. लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि जब सिस्टम जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा तो उस टाइम पे उसकी टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए. ठीक है, टेम्परेचर उस टाइम पे उसका क्या होना चाहिए. हमने डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस के बारे में हमने पढ़ा जो कि टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. लेकिन जब ये हमें बताना हो कि स्टार्टिंग में उसका जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, यानी स्टार्टिंग में जो हमारे पास टेम्परेचर है उसका क्या होगा, तो अगर हमें यही नहीं पता तो इन ऑपरेशंस का जो है वो हमें कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, हमें जब यही नहीं पता कि जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो अगर हमें यही नहीं पता तो हमें इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो आपके टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर रहे हैं. लेकिन स्टार्टिंग के टेम्परेचर का तो हमें नहीं पता कि हमारे स्टार्ट में टेम्परेचर क्या होगा.
इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम किस तरह से रिजॉल्व की जा सकती है। तो जैसे हम फंक्शन इनिशियलाइजेशन करते थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हम सीख के आए, इसी तरह VDMSL में भी हम फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे, यानी इनिशियलाइजेशन फंक्शन के थ्रू हम जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए जो VDMSL में कीवर्ड यूज होता है वो init का है, ठीक है, init का। अब ये तो हमने देखा कि इसका सोल्यूशन जो ये है कि हम फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस मसले का हल फंक्शन को इनिशियलाइज करके निकाल सकते हैं। और उसके लिए हमने ये देखा कि init का जो है वो कीवर्ड हमारे पास यूज हो रहा है। तो अब ये जो फंक्शन हमने इनिशियलाइज किया है, ठीक है, तो इसको हमने स्पेसिफाई कहाँ पे करना है, ठीक है, कि हमने इसको स्पेसिफाई कहाँ पे करना है। तो हम इसको जो है वो इन्वेरिएंट की डिक्लेरेशन के बाद स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, कि हमने अभी अपने प्रीवियस टॉपिक में जो है वो इन्वेरिएंट के बारे में पढ़ा था। तो इन्वेरिएंट के डिक्लेरेशन के बाद हम जो है वो फंक्शन इनिशियलाइजेशन को हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कंडीशन जो है वो उसको, इसकी कंडीशन ये है कि वो उसे सेटिस्फाई, सिस्टम जो है सेटिस्फाई करे इस कंडीशन को जो हम स्पेसिफाई करेंगे। हम कोई भी जो इनिशियलाइजेशन फंक्शन में कोई भी कंडीशन जो है जब उसको स्पेसिफाई करेंगे तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा जब सिस्टम जो है उसको स्टार्ट किया जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, अब हमें ये नहीं पता कि उसकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगी। हमारे पास इंक्रीमेंट का ऑपरेशन है, डिक्रीमेंट का ऑपरेशन है, जो कि टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर रहा है, लेकिन हमें उनका तब तक कोई फायदा नहीं है जब हमें यही नहीं पता कि स्टार्टिंग में हमारे सिस्टम का टेम्परेचर होगा क्या, ठीक है। तो जब हम इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम को जो हम थ्रू आउट एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं उसकी बात करते आ रहे हैं, तो इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम को जब हम ऑन करते हैं तो हम लेट सपोज हम ये कहते हैं कि उसकी जो है वो टेम्परेचर जो है ना वो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो वो तब तक उसके टेम्परेचर को एडजस्ट करता रहेगा जब तक वो 5 डिग्री सेल्सियस तक नहीं चला जाता, यानी 5 डिग्री सेल्सियस तक जब तक आपका टेम्परेचर नहीं आता वो तब तक उसको एडजस्ट करता रहेगा। और जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस पे आपका टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट होता है तो उस टाइम पे आपका जो इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन फंक्शन जो है वो यहाँ पे ये बताएगा आपको सिस्टम के स्टार्ट में कि आपके सिस्टम का जो स्टार्टिंग जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसको लिखते किस तरह से हैं, तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने अभी बात की, एक तो ये आपके इन्वेरिएंट की डिक्लेरेशन के बाद आएगा और इसको हमने जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज किस तरह से करवाना है, तो इसके लिए इनिट का हमने कीवर्ड पढ़ा कि इनिट का जो कीवर्ड है ये बेसिकली फंक्शन इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। मेक इंक्यूबेटर मॉनिटर, ठीक है, मेक हमने मेक के फंक्शन के बारे में भी पहले पढ़ा है। इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम है हमारा, ठीक है, और उसके अंदर जो हमारा कंपोनेंट आ रहा है वो हमारा टेम्परेचर टी है, यानी टी वैल्यू, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर को। अच्छा, ये डेल्टा का साइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है इज डिफाइंड एज, ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। T इक्वल्स टू 5, यानी हमने टेम्परेचर को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया 5 से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपसे ये बात की कि अगर हम जो है वो 5 के साथ इनिशियलाइज करवा देते हैं इसको, तो वो हमारा सिस्टम जो है वो टेम्परेचर को तब तक एडजस्ट करता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू 5 पे मुस्तहकम नहीं हो जाती, यानी 5 पे एडजस्ट नहीं हो जाती उसकी वैल्यू। जब तक 5 डिग्री सेल्सियस तक उसकी वैल्यू एडजस्ट नहीं होती वो तब तक टेम्परेचर को जो है वो क्या करता रहेगा, टेम्परेचर को एडजस्ट करता रहेगा। So this is similar in style to the invariant function and has the same signature. The interpretation in this case is that the expression on the right hand side of delta symbol, ये डेल्टा सिंबल मैंने आपको बताया डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज डिफाइंड एज, डिफाइंस द कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू आफ्टर द सिस्टम इज फर्स्ट ब्रॉट इनटू बीइंग, ठीक है, कि पहली दफा जब सिस्टम को स्टार्ट किया गया तो जब तक वो 5 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर नहीं आ जाता वो तब तक उसको एडजस्ट करता रहेगा। So it is very important to note that initialization function, as with the operations, must preserve the invariant. Once again, in our example, we are able to argue that since this function sets the temperature to 5 degrees, which is within the constraints allowed, the invariant is not violated.